It is our utmost pleasure and privilege to have the dynamic faculty with us, who is Girish Ahuja sir, who as such doesn't require any introduction because it's because of his name we can say half of the audience we could have gathered because of his name and fame. So I'll request all the members standing outside if you can hear me. We are about to start the session. If you're done with your tea, requesting all of you to please come inside. We are about to start the session. I'll request Hitesh Kriplani, coordinator for the day, to kindly give a brief introduction of Girish Ahuja sir. Good evening. Sir, you know, everyone are hungry for the listening a brief about the budgetary provision and changes applicable for the assessment year 24-25. Government is frequently amending the provision of the Income Tax Act, and with the help of this seminar, our members will be benefited by getting in-depth understanding of the such provisions. In introduction of the sir has been described as a guru of the income tax by various peoples. Even so many of us will still continue to remain his students. In recent times, he is conducting to teaching the members and sharing his knowledge, and he has a vast and rich experience in the field of account and finance and taxation. He was nominated for redrafting the Income Tax Act and drafting a new income tax law. Sir is the author of various books on the direct taxation, and he has addressed more than 4,000 seminars organized by the various institutes. I invite sir to address on the topic. Thank you. Sitting in front of me, two Central Council members, one from Mumbai, the other from Ahmedabad only, CA Piyush S. Shajardi, Chairman of the Directors Committee, CA Purushottam Khandelwal ji, Chairman of Sunil Sangvidi, the Chairman of the Ahmedabad branch, Neerav Agarwal, Vice Chairman, Hitesh Kriplani was sitting there, now he's come down of course, Sunil Shah, the Secretary of the branch, Mr. R.M. Mohil, coordinator, ladies and gentlemen. Well, I've been told that you have to talk about, you have to revise what we are supposed to do in the Finance Act 2023. मैं ऐसे पूछना चाहिए था कि आगे क्या आ रहा है तो पिछला पूछ रहे मुझसे पर आगे आने वाला अब कुछ पता नहीं है Before first I could say कि क्या आना है but now no one knows. Everyone knows why the world knows what is going to come. There were certain decisions which they were supposed to take, they may not be able to take now. So that's why I'm saying it. Number one was, of course, it came in Finance Act 23, the new regime versus old regime. And I was sure, but I know I've not commit now. This budget, they had planned to have only new regime and do away with the old regime. Actually, they had done it last time. They had planned last time that we will go for new regime only and no question of old regime. I went there before that budget came. Sir, why are you going for new regime and why shifting to the new regime? We are able to save some money in the social security is not there, in the provident fund, public provident fund, we are able to get deductions. He says, we have given you all deductions. Whatever benefit we are going to give you. But we are shifting to a new regime. A reason, simplification. But in income tax, you can't talk about simplification. Something or other will always come back because the gentleman sitting here will change it. So loopholes you'll be able to find out. I said, tell me one reason why do you want to go to new regime? I was little weird because I was getting one deduction under 80 QQB as an author to the extent of rupees 3 lakh. 3 lakh bucks out to 90,000 plus surcharge plus education tax amount to more than 1 lakh. So I said, I'll be losing that money. I was not concerned with PPF and all that because there the benefit they have given, and even then, even if they have come to new regime, I will definitely deposit in PPF because of exemption of the interest part. So वो कोई नहीं है, सब करेंगे new, चाहे वो new हो या old. I said, give me the reason why are you going for new regime? He says, पहले salary वालों को बताऊंगा. बताइए. 75% of the house rent allowance claim are bogus. 70%.
If somebody paying to the brother, mother, either, they are giving rent to them and they are not showing income, they are bogus claim, or even if they are showing their income, that is not taxable or maybe taxable at a lower rate, you are claiming a reduction of 30%. ये बोगस है. कहते जहां तक कि अपनी बीवी को भी दे देते हैं रेंट. वो इसे she doesn't allow. पहले रेंट दो घर का, फिर मैं आपको दूं. Because there are two judgments which are there, which were in our favor. Tribunal judgment that you can pay rent to your wife also. So therefore it was happening. चलिए. But what is the second reason? He says सैलरी वाले दान बहुत देते हैं. देते ही सैलरी वाले, और कोई दान नहीं देता है. Am I right or wrong? सिर्फ सैलरी वाले ही दान देते हैं. अरे मैंने कहा सर ये तो कबीर दास कह गए थे. क्या कह गए थे कबीर दास? मेरे कबीर दास ने कहा था चिड़िया चोंच पर ले गई, नदी ना घटे और नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए भक्त कबीर. कहाँ घटा? जितना दिया उतना ले लिया और साथ में एग्जामिशन ले ली, तो घटा कहाँ है? कह रहे थे आपसे हम नहीं कर सकते. सो माई पॉइंट वॉज दे नो वॉट इज हैपनिंग. Everything they are aware of now. Gone are the days when they were not aware of anything. They know much more than what you know about yourself. Let me tell you. They know much more than what you know about yourself. Time आने वाला है जब कहेंगे हमें सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रिटर्न को साइन कर दीजिए, बाकी हमें सब पता है आपके बारे में. और हो रहा है. This is happening. Every information is them. You are getting information from 126 countries. Exchange of information. And whatever you're doing here in India, every penny is being counted. कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, सब पता उनको. Gone are the days. Gone are the days. So new regime has come. You know that. But then asked, sir, we will continue with the old regime, no problem. Because I told them, elections are coming, please don't do that. And कुछ गड़बड़ तो हो ही गया, क्या कर सकते. तो he says, how many percent will go to the new regime now? I said 70%. Very good. I said, they said, why? I said, 50% will forget that they have to opt for old regime. Date nikal gaya, khatam ho gaya kaam, new regime ho gaya. So you have to be very careful that if you want to go to the old regime, you have to apply before the due date. And if you don't apply before the due date, you are not eligible for that. And in this case, new regime is now for 115BAA is now subsection 1A, which says it is applicable to individual HUF, AOP, BOI, everybody is covered now. Everyone is covered in the new regime. First 3 lakh, next 3 lakh 5%, next 3 lakh 10%, next 3 lakh 15%, next 3 lakh 20%, next 3 lakh 25% and above about 15 lakh 30. सबको पता है, सबको पता है ये होना. और आप कैलकुलेट कीजिए, न्यू regime is much better than the old regime. Unless you are interested in that saving part, those who will be affected will be those who are having loan or borrowing, or housing loan, or maybe HRA. Otherwise, everybody is going to be benefited under the new regime. And 99%, now I cannot say. I was saying even 6 days back, please note old regime will go. And there will be only new regime. But now, no commitment, no thing. I cannot say what will happen. Everything will change according to the things, And who is going to be the finance minister, that also permutation combination will always change. अब change होगा. क्या होगा मुझे नहीं पता. मैं मोदी भी नहीं हूँ और अब तो मोदी जी के हाथ में भी पूरी पावर नहीं है. करना पड़ेगा. So what I'm trying to explain, please be careful that we are going to be under new regime 99%. It will become simplification. It will simplify your law because Chapter 6A is not applicable. You don't have to bother about that. So this is new regime. You all know surcharge, what is there, the surcharge, I need not tell you that surcharge is continue to be there on the case of, but the only benefit we have taken for surcharge is that in case of a dividend, in case of 111A, short-term capital gain or listed, 112, all like long-term capital gain, 112A, listed security long-term capital gain. The surcharge is not more than 15%. That is the maximum we have for surcharge. So this is the new regime.
Anything you want to ask about new regime, most welcome. Otherwise, I'm going switching over to the old. Because new regime versus old regime. You know what is old regime, I need not tell you about the old regime. Anything you want to know. Next point. कई बार गलत करके ना आदमी फंस जाता है. मैंने गलती करी थी in 2018. आज तक वो उसका इफेक्ट देखिए क्या हुआ. What happened, sir? Please, Chairman is there. We were redrafting the income tax law. वो तो आया नहीं क्योंकि जेटली जी चले गए और मैडम से मैं कुछ कह नहीं सकता था. कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं क्या कह सकता हूँ. पूरा इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कह सकता था. मैं क्या हुआ. तो जब what I was saying, we were redrafting it. बड़ी क्वेश्चन से बड़े इशू थे, बड़ा इशू था. मेरे मुंह से निकल गया. I tell you one point जहाँ कितनी सेविंग हो रही है. क्या है? And there is a law from 1961. Employers' contribution to recognized provident fund is exempt up to 12% of salary. था सर, अब बदल गया. पहले तो ये था 12% of salary. I said there are CFOs, CEOs and mid-persons who are taking salary of 3 crore, 4 crore, 5 crore, Mukesh Ambani maybe 14 crore, they're all taking salary. Right, sir? And they ask their employer to contribute 12% of the salary. Let's say 3 crore, I'm taking a small amount. 3 crore, 12% is 36 lakh. Am I right? They are contributing, who is contributing? 36 lakh employer. An employer is getting deduction of that 36 lakh. But that amount is fully exempt in the hands of the salaryman. And when he is getting interest on that, that too is also exempt. And finally, when he receives the money, the total amount is exempt. See, crores of rupees he will get when he retires. And he does not pay a single penny tax. अरे ये तो हमने देखा ही नहीं. अबे देखा नहीं 1961 से है. It is not today. Right from 1961 we have read, you have read that it is 12% of salary and there was no limit. ये तो गलत हो गया. तो हमें चेंज करना चाहिए. मैं बोला नहीं कुछ, वैसा गलती हो गई. तो कह रहे अच्छा, मैंने कहा ऐसे कर लीजिए 12% of salary or 12 lakh rupees per year, whichever is less. 12 lakh means about 1 crore. कुछ ज़्यादा तो नहीं था. एक कर लीजिए. 3 days we were discussing and they were not agreeing for even 1 crore. तब मैं नीचे आ गया 9 लाख करता. 9 लाख भी नहीं माने. 1 crore का 12% होना और 9 लाख का कितना होगा समझ जाए ना. कहाँ किया? 7,50,000. Now what is? You contribute by the employer to the recognized provident fund. You are given an exemption to the extent of 12% of salary or rupees 7,50,000 per year, whichever is. इतनी गाली पड़ी मुझको CFO से, CEO से, अपनी जो जिन कंपनियों में मैं था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो भी कहने लगे आपने मरवा दिया. गलती तो मैंने कर दी ना. इतना अमाउंट उनको सेविंग हो रहा था. लेकिन वो स्टार्ट हुआ. वो स्टार्ट, सॉरी मैंने बंद किया, आई शुड हैव डन इट. उस स्टार्ट से आपको लगा अब क्या हो रहा है. सुनिए, उसके बाद क्या चालू हुआ. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो गया 7.5. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी कर दिया. दैट यू कैन नॉट कंट्रीब्यूट मोर देन 2,50,000 रुपीज. डिडक्शन मिल, डिडक्शन की बात नहीं. 80C में तो 150 मिलता है. बट यू इफ यू कंट्रीब्यूट मोर देन 2,50,000 रुपीज टू योर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एनी अमाउंट एक्सीडिंग 2,50,000 विल बिकम टैक्सेबल. ये सेकंड पॉइंट शुरू हुआ. पहले नहीं था. हम तो जो सैलरी वाले पूरा ही जमा करा देते थे. चलिए 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, इंटरेस्ट वहाँ पे है. वहाँ 250 आ गया. फिर इन्होंने अपने लिए कर लिया जहाँ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं है 5 लाख. फिर आ गया इंटरेस्ट. इवन इंटरेस्ट विच इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड विल नॉट बी एग्जेम्प्ट इफ द अमाउंट कंट्रीब्यूट इज मोर देन 2 लाख. हो गया सर. उसके बाद यूलिप आ गया. आया यूलिप कि 2,50,000 यूलिप और मैक्सिमम 5 लाख, वो भी करेंगे तो नहीं करेंगे. अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी आ गया. ये उसी का स्टार्ट है जहाँ पर लोग रिच मैन बेनिफिट लेते थे. स्टार्टिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज, then again employee contribution, then ULIP, and now life insurance policy is बार आया. That you can take a life policy, but the amount exceeding 5 lakh, if it is given,
the whole amount will become taxable and it will not be exempt under 1010D. Maximum कितना? One or more than one life policy. One or more than one life policy. On or after 1/4/2023. आ गया ना? वैसे पहले लिमिट है 10% of the sum assured, वो तो पहले ही है. There is already a limit 10% of the sum assured. You can take a policy of 50 lakh, maximum allowed is 5 lakh. लेकिन अब 1 करोड़ की पॉलिसी लेंगे तो क्या आप 10% कर सकते हैं? कर नहीं सकते. 10 लाख करेंगे तो पूरा तो कितना होगा? 5 लाख. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ना पॉलिसी 50 लाख के ऊपर लेने में कोई फायदा नहीं. या फिर 20 ईयर लो, 20 ईयर लो तभी तो 5% होगा. So my point is the life policy, if one or more than one taken on after 1st April 2023, the aggregate amount if exceeds 5 lakh, वो policies में tax लग जाएगा when you receive back under section 1010D and it will be taxable under their income from other sources. 56(2)(13). जबकि यूलिप को टैक्स किया अंडर कैपिटल गेन, यूलिप को टैक्स किया था लास्ट टाइम अंडर कैपिटल गेन, इसमें टैक्स कर दिया कि 5 से ऊपर पेमेंट दोगे प्रीमियम की any year, during any previous year, mind it, you are going to premium, you are going to be taxed on the amount जो पॉलिसी 5 के नीचे भरी है वो छोड़ देंगे. सपोज एक 3 की है, दूसरी 3 की है, पहली 3 को छोड़ देंगे, दूसरी 3 को 5 से ऊपर हो गई ले जाएंगे. एक 2 की है, दूसरी 2 की है और एक 1 की है, नो प्रॉब्लम, 5 लाख. एक 3 की ली, एक 2 की ली, एक 1 की ली, 3 2 छोड़ देंगे, 1 के ऊपर टैक्स. एक 3 की ली, 1.5 ली, 1.5 ली, 3.1.5, 4.5 को छोड़ देंगे, वो 1.5 इंक्रीजेस तो उस पर पूरा लग जाए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल. 5 लाख इज द लिमिट बट टोटल पॉलिसी मोर देन, जहाँ 5 क्रॉस हुआ वो पर जिस पॉलिसी की वजह से वो पॉलिसी टैक्सेबल हो जाएगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस ये 1010D में अमेंडमेंट आया and it is be taxed under section 56 subsection 2 clause 13 under the income from other sources. Clear है sir? ये था लाइफ पॉलिसी का 1010D. एक छोटा सा है अग्निवीर, अब वो ही नहीं पता क्या होगा. Agniveer, 10% contribution by the employer, or whatever contribution by the employer and contribution by the employee. It was, whatever contribution was by the employer was taxable under the head salary, but there was a section introduced under 80CCH that they will get deduction both of the employer contribution as well as the employee contribution under section 80CCH. And whenever they receive the money back, it will be fully exempt. तो ये कहने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया, अग्निवीर स्कीम. So that is another issue. Now the major issue which was there, और ध्यान से सुनना पड़ेगा, 28 clause IV. Any benefit or perquisite received by the assessee during the course of carrying on business or profession shall be taxable under the head profit or gain from business or profession, whether that benefit is in kind or in money or partly in kind or partly in cash, it will be taxable. इसका implication बहुत बड़ा है. Now waiver of loan or OTS, whatever you can. There can be two types of waiver of loan. One is waiver of what you call working capital loan, which is CC, or waiver of term loan. ठीक है sir? ये दो loan waiver होते हैं. When it is a working capital loan, we have many judgments which says this will be taxable under section 41(1). Although loan है, लोन लेकिन यूटिलाइज वो लोन आपने वर्किंग कैपिटल के लिए किया है और उसका डिडक्शन आपने ले लेते हैं उस हिसाब से, तो ये 41(1) में हो. Many judgments are there. But there is a judgment of Mahindra and Mahindra Supreme Court for term loan. That said waiver of a term loan is in cash. That is not in kind. So therefore पहले काइंड का था तो जब तक वो 28(4) तब लगेगा जब बेनिफिट काइंड में दिया जाएगा. ये 23 अभी तो किया 1 अप्रैल 23 से. अगर कोई वेवर हुआ, टर्म लोन भी हुआ, तो भी टैक्स लगेगा, बट दैट विल बी टैक्स अंडर 28(I)(V). अब महिंद्रा हैज बीन ओवररूल्ड. नाउ यू हैव टू पे टैक्स बोथ वेवर ऑफ टर्म लोन
और waiver of working capital. Working capital on 41(1), term loan under section 28(4). बाकी बेनिफिट परकोजर तो हैं, सेक्शन 194 भी है, TDS कटना है, लेकिन एक सर्कुलर दिया हुआ है कि whenever there is a waiver of loan, the banking institutions and certain other institutions need not deduct TDS. However, the normal provisions will be applicable. पर्पस समझ रहे क्या है? एक तो पैसे नहीं आए, 5 करोड़ लेना था, 2 करोड़ में सेटल किया, उसके बाद TDS काट के अपनी जेब से जमा कराऊंगा, तो इसका क्या फायदा होगा? इसलिए उन्होंने कहा you may not deduct TDS. But at the same time, it does not mean you are not supposed to deduct TDS, it is exempt. No, it is taxable. It is taxable in his hand. But you are not liable to deduct TDS. Those institutional list is there in a circular where you can take the benefit. Clear है सर? तो ये ध्यान रखिए, अब वेवर पूरा टैक्सेबल हो गया, चाहे टर्म लोन हो और एनी अदर बेनिफिट, तो आपने सारे सर्कुलर पढ़े ही हैं, जो कितनी गाइडलाइंस आया था। आजकल एक और प्रॉब्लम है, पहले सर्कुलर जाते थे वो बाइंडिंग नहीं होते थे हमारे पे, इट वॉज बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट एंड नॉट ऑन द SSC, नोटिफिकेशंस बाइंडिंग टू। अब तो गाइडलाइंस आती हैं एंड उस पर लिखा हुआ है हर सेक्शन में, दीज गाइडलाइंस आर बाइंडिंग बोथ ऑन द SSC एज वेल एज डिपार्टमेंट। तो अब ये गाइडलाइंस में आया कि ये सब कुछ बाइंडिंग है, यू कैन नॉट से देयर इज नो। सो प्लीज नोट 28(1)(b is going to put us into lot of difficulties. तो ये क्लियर हो गया कि कोई भी बेनिफिट या परकोचल मिला, वो तो पूरे केसेस थे, मैं तो सिर्फ लोन की बात कर रहा हूँ, but there are so many cases, so many circular we came, 2 circular came where they have given you the complete picture and then you are supposed to deduct 194R TDS also on that amount, that benefit or परकोचल. Clear है सर? अब आया 23B(H) clause, सेक्शन 23B clause H. हम लोग शोर मचा रहे हैं, किसी ने शोर नहीं मचाया फरवरी से पहले, तब तक किसी ने देखा ही नहीं। आप देख रहे हैं कि 45 डेज में पेमेंट देनी है, जब याद आया 45 डेज होने वाले थे मार्च को, पेबल क्यों लिखा, एनी सम पेबल ऑन 31 मार्च, तो पेबल के लिए 15 फरवरी को याद आया होगा, ओहो ये तो नहीं देंगे तो ये तो डिसअलाउ हो जाएगा। पार्लियामेंट वाज सिटिंग देयर एट दैट टाइम. Had we represented at particular point of time when the parliament was there, they might have taken some step. वैसे उनको स्टेप नहीं लेना था, डेफर कर सकते थे मैक्सिमम 1 year, क्योंकि दिस इज नॉट डन बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. Who approached them? MSME. MSME approached that this law is there right from 2006 से, and it is already there that you have to make the payment within 15 days or 45 days. If there is no agreement, if there is agreement 45 days, otherwise 15 days. आज से थोड़ी है, 2006 से है, लेकिन कोई देता ही नहीं था. इंटरेस्ट भी पहले भी था 3 times, but nobody was paying interest, so therefore nobody was bothered. लेने वाला देता नहीं था, देने वाला देता नहीं था. ये लेते ही नहीं था ना, कि बाद में काम थोड़ी बंद कर देना है, इसलिए कोई लेता, डिमांड ही नहीं करते थे, इसलिए कुछ हुआ ही नहीं. जबकि लॉ था, if your accounts are liable to be audited, you have to provide for that interest. ये लॉ है, MSME में लिखा है. अगर आपके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, वो अब याद आ रहा है, तो उसमें ये था कि इंटरेस्ट को प्रोवाइड करना है इन बुक्स ऑफ अकाउंट. ये हैड टू प्रोवाइड, बट नोबडी बॉदर्ड. इवन 3CD में भी कुछ नहीं, किसी ने बॉदर नहीं किया, प्रोवाइड नहीं होगा. अब तो आ गया ना 45 days 15 days. बाद में बहुत डिमांड आई. एक तो कहते हैं हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमने 43BH डाला ऑन दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ MSME that we are not getting the payment, although you are allowing us interest, but nobody is paying us interest. Make a law where it will pinch them and they will have to make the payment to them. Pinch. अरे आपकी आ गया, वो लॉ तो लॉ है ना सर, लॉ तो लॉ ही है ना, कि वो इंटरेस्ट 3 times ऑफ दी बैंक रेट, 3 times और कंपाउंडेड मंथली. एग्रीड. अप्लाई भी था और देने वाला भी होशियार है, वो कैलकुलेट करके देता था, ठीक है यार बाजार से लोन लूँगा, ठीक है इनसे 120 दिन ले लो, ठीक है. लेकिन MSME ने किया, और हमारी इंस्टीट्यूट ने बसें चलाई उसकी MSME की,
but 75 days. So what I'm trying to say, law नया नहीं है, law पुराना था. Now it has been formalized that you will not be allowed any deduction if there is any sum payable where, and you make the payment beyond the limit specified under section 17 of the MSME Act. वो करेंगे तो हम आपको नहीं देंगे. 15 है वो, जब ऐसा नहीं है. 45 days में अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने पेमेंट नहीं दी तो वो कुछ कर नहीं सकते. You will have to do it. But there are issues in this also. One thing is, it is the duty of the person who is SME to have informed me. But please don't think it is his duty only. If he does not inform me, it is my duty also to write to him, please let me know whether you are covered under MS, you are a micro or small enterprise or not. मेरी ड्यूटी है उसको इन्फॉर्म करना, पूछना और उसको जवाब देना. अगर वो जवाब देगा तो आपको काटना पड़ेगा. अगर उसने ऑलरेडी प्रिंट करा दिया है ऑन द बिल MSME नंबर, तो आप एक ही काम कर सकते हैं, पोर्टल में जाके चेक कर सकते हैं कि वो जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन है. बिकॉज बोगस भी डाल सकता है कि मेरे को पेमेंट मिल जाएगी, बट दैट्स ऑल. लेकिन उसका एक वाया मीडिया तो यही है, यू शुड हैव रिटन ए. हाँ जी, या ये नो, अगर वो मेंशन नहीं कर रहा तो पहले तो उसकी ड्यूटी है. अगर वो नहीं करता, मेरी ड्यूटी कंफर्म करना. तरीका है ना, लोगों ने किया है. यू हैव रिटन ए लेटर टू देम, प्लीज लेट अस नो वेदर यू आर कवर्ड अंडर द MSME और नॉट. ये वजह प्लीज लेट अस नो इमीडिएटली. उसे कहेगा जवाब मत देना, फिर एक चिट्ठी और लिख देना. I had written a letter to you on such and such date asking you to tell me whether you are covered under that, and we are giving you one more opportunity to reply to that notice, and if you don't reply, we will presume that you are not covered under MSME. बात खत्म हो गई. गलत है तो और क्या कराते रहे हम? कह रहे गलत कर, अभी तक होता क्या रहा है? एक मिनट सर, आपकी बात. हाँ, yes, you are buying from him. Yes, it is our duty, because you are liable. वो अलग बात है. I do not know what is his number. I cannot check it. But once he informs me the number, I can check it. But my duty is to find out who are my vendor. Vendor का बनाया जाता है और vendor के बारे में लिखा जाता है. उसमें SME है तो आपको SME लिखना पड़ेगा. उसकी चीटी उसकी है. आप पोर्टल में तब जाएंगे जब नंबर होगा, अदरवाइज तो यू डोंट नो. एंड एवरी ईयर इट इज रिन्यूड. माय पॉइंट इज, ये चीज़ें लॉ है, और लॉ को कैसे डिफीट करना, दैट इज ए डिफरेंट थिंग. पर अब पॉसिबल नहीं होगा डेफर करना, क्योंकि अब हो गया. नहीं तो उम्मीद थी कि एक साल डेफर करा देंगे इस साल, वो भी अब चांस नज़र नहीं आता. बट MSME ये बता दूं, ये लॉ चेंज होने वाला नहीं है. डेफर हो सकता है बट ये चेंज होने वाला नहीं. हाँ सर, करवाना पार्लियामेंट नहीं थी तो कैसे करवा लेते? हाँ, बाद में बता रहे हैं पार्लियामेंट थी नहीं तो होता नहीं है. अब पार्लियामेंट आती तो कोशिश करते. अब पार्लियामेंट ही नहीं, वो आएगी तो कौन सी आएगी कुछ पता नहीं है. कुछ चीज़ें होती हैं सर जहाँ पर आकर एक ब्रेक लग जाता है. यू कैन नॉट टेक हार्श डिसीजन, यू कैन नॉट टेक गुड डिसीजन, यू हैव टू टेक अलायंस इनटू. इसलिए मैंने यही बोला कि अब ये ध्यान रखिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. 45 डेज 15 डेज. लेकिन जो सम पेएबल है, जो 31 मार्च से पहले पे कर दिया है, उसमें इंटरेस्ट की लाइबिलिटी है, वैसे कुछ नहीं है. देयर इज ओनली इंटरेस्ट लाइबिलिटी इफ यू हैव पेड बिफोर 31 मार्च. लेकिन सीए का क्या होगा, मैं तो ये नहीं समझ में आया. हम ऑडिट फी प्रोवाइड करके उसको डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन सर्विस सरेंडर ही नहीं की. जब सर्विस रेंडर नहीं की तो किस बात का 15 डेज और 45 डेज. सर्विस रेंडर करेंगे समवेयर इन सितंबर, एम आई राइट? अगर तो उस वक्त बिल देंगे तो 15 दिन 45 दिन वहाँ से होंगे, लेकिन 31 मार्च तक दे देगा तो इंटरेस्ट ही है. तो हमने तो हमें वो नहीं, फीस नहीं मिलती, इंटरेस्ट की बातें तो बाद में छोड़ो. और यू गेटिंग माय पॉइंट? सो माय पॉइंट इज, हम लोगों को ज़्यादा इसमें बेनिफिट नहीं है, बट एट द सेम टाइम लॉ हैज़ बीन देयर. And 45BH
is now you have to report in 3CD and you cannot take a liberty of not reporting within that. Appointed date 15 दिन में या 45 days तो है ही है, 45 days मैक्सिमम है, ये नहीं है कि 45 days है, मैक्सिमम 40. क्लियर सर? कोई क्वेश्चन इसमें है? श्योर? सर हज़ारों होते हैं, हज़ारों से डील करते हैं, आजकल तो सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, सब पता है. और नहीं करना चाहें तो बहुत कुछ है, मतलब जब वो हज़ारों से डील करते हैं तो उसके अकाउंट्स तो बनाते ही हैं. वेरीफाई, देखिए सीए तो मरा है हर बार, सीए के लिए तो छोड़ दो, वो तो उससे मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट लेगा. प्लीज गिव अस द लिस्ट ऑफ एसएबी. हाउ कैन आई चेक? You have to take a list and please let us know. Have you made the payment within such time or not? Management undertaking लीजिए और टेस्ट चेक कर लीजिए. अरे करिए, और क्या कर सकते हैं मैनेजमेंट? हैं ये 3CD भी क्लाइंट बनाता है, हम नहीं बनाते, लेकिन आप ही बनाते हैं, आप ही साइन करा लेते, उसके लिखवाते ही नहीं. 3CD क्लाइंट बनाता है और क्लाइंट को साइन करने चाहिए, लेकिन वो करते ही नहीं है. 3CD कौन बनाता है? आई एम नॉट सपोज टू मेक 3CD, लेकिन हम तो उसकी रिटर्न भी भरते हैं, हम तो उसके अकाउंट्स भी लिखते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं ना, वो चीज़ अलग. लेकिन 3CD इज नॉट माई ड्यूटी. माई ड्यूटी इज वो लिखता है, उसके बाद मैं साइन करता हूँ, काउंटर सिग्नेचर मेरे, लेकिन बनाते ही हमने. और वो क्या लिखते हैं? नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, और क्या लिखते हैं? हाँ सर लॉ है. टीडीएस कौन सा आ गया? इंटरेस्ट. देखिए आप कह रहे हैं प्रोविजन इंटरेस्ट का करना है, और वो इंटरेस्ट का प्रोविजन करेंगे तो मुझे टीडीएस भी काटना पड़ेगा. लॉ तो दोनों ही है डिफॉल्ट, लॉ तो दोनों ही डिफॉल्ट है, लेकिन लोग प्रोविजन ही नहीं करते तो टीडीएस कहाँ से काटेंगे? अभी तक तो किसी ने किया नहीं, अभी तक तो किसी ने. बात वही है, अभी वो इंडियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने लिखते फॉलो करते हैं, बता तो दो मुझे. लेकिन करना तो पड़ेगा सर, जमाना बदल गया है. यू हैव टू हैव. और नाउ गॉन आर द डेज. भूल जाओ जो हमने क्या क्या एडवांटेज लिए, अब वो एडवांटेज अब आने वाले नहीं. यू विल हैव, बिकॉज इट इज़ नॉट फ्रॉम मोदी जी, इट इज़ डिजिटलाइजेशन. जहाँ डिजिटलाइजेशन हो गया पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास है. Each and every information they have with them. हर चीज की इंफॉर्मेशन उनके पास है. So what is the point now? Tell your clients सुधर जाओ, नहीं तो मोदी जी सुधार देंगे, सुधरना पड़ेगा. So ये पॉइंट भी आ गया. हाँ जी दोबारा बोलिए. और तो इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है. देखिए अकाउंट्स अगर ऑडिट होते हैं तो सेक्शन 8 वो जो 18 या 19 है ऑफ द एमएसएमई एक्ट, उसमें क्लियर कट लिखा है यू हैव टू प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट. और 43B में अभी तक ये था नहीं, कॉलम था ही नहीं, तो हमने कभी इंटरेस्ट के बारे में बॉदर ही नहीं किया है. अब जो कॉलम आएगा उसमें आएगा ये प्रॉब्लम. And if interest is not provided, then we can write a note on notes. You have to provide. करते नहीं है वो अलग बात है, अभी तक नहीं किया था. नहीं, कौन सा एक्सपेंडिचर नहीं प्रोवाइड किया? परचेज इज एन एक्सपेंडिचर है सर. देखिए अकाउंटिंग टर्म्स भी तो होती है ना. आप छोड़ दीजिए इनकम टैक्स को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी तो है. विल यू नॉट डू इट? और फिर एमएसएमई एक्ट में लॉ है, इट इज ऑल्सो अ सेंट्रल लॉ दैट यू हैव टू प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट. करा नहीं, पता नहीं लगा. तो 98% यहाँ तो रिटर्न बढ़ते हैं एसएससी की, इंडिविजुअल की. 80C भी क्लेम कर लेता, कभी जमा ही नहीं कराया. 80D भी कर लेता है, 80G भी कर लेता था. अब आप समझ में आ रहा है ना, मैं कुछ बोलूँ ना तो अच्छा है. 98% केस से निकल जाने. अरे 2% ही तो हैं, सिक्योरिटी आनी ही नहीं है, तो 98 तक गए. वो तो 80G इसलिए ले आए कि वो उसमें बोगस लिए जा रहा था, तो 10BD आ गया. लेकिन अब जरूरत क्या है 80G की, मुझे ये बताइए. जब आप नए रिजीम में हैं, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ 80G? हु वांट्स 80G?
नो क्वेश्चन, ATG इज फॉर डोनर, नॉट फॉर डोनी। डोनर जब ATG मिलेगा ही नहीं डिडक्शन, उसको जब चैप्टर 6 से लगेगा नहीं, तो व्हाट इज द नीड ऑफ ATG? आई फेल टू अंडरस्टैंड। अब ATG कोई नहीं मांगेगा, तभी तो ये बॉन्ड वाला भी आ गया, इलेक्टोरल बॉन्ड। कोई ATGGB और ATGGC मिलना ही नहीं है, अब कंपनी दे ही नहीं सकती, देगी तो डिडक्शन ही मिलेगा, तो कौन लेगा ATGGC? सारे तो 22% में आ गए। एम आई राइट कर रहा हूँ? कौन रह गया 30% में? मैट कंपनी रह गई जो लॉस वाला है, अदरवाइज तो कोई भी नहीं है उधर। किस चीज का? क्या करेगा न्यू रिजीम वाला? न्यू रिजीम कहाँ? न्यू रिजीम में है ही नहीं, चैप्टर 6 है, SOI 80M के है ही नहीं। वेयर इज द क्वेश्चन? ये इलेक्टोरल बॉन्ड वैसे ही बंद हो गए, ये समझा करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने फेवर कर दिया, अगेंस्ट कर दिया, कुछ नहीं किया, आगे मिलना ही नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड। है पहले क्या करती थी जब नहीं था? पहले नहीं था तो अभी क्या करती थी? सर डिडक्शन नहीं मिलेगा, बाकी तो जो होगा सो होगा। ये 20,000 से 2,000 क्यों लाए थे? तो कैश जमा करते थे, समझ में आया? 20,000 की करके सब कुछ माफ था। रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये जो सेक्शन 13 है पॉलिटिकल पार्टी का, 20,000 का था ना, फिर 2,000 कर दिया ताकि चेक से लो, वो लो, चेक से लोगे तो ATGGB ATGGC मिलेगा। अब चेक के कौन देगा? वो कहेगा मुझे डिडक्शन नहीं मिलनी, मैं क्यों दूँ? व्हाई शुड आई गिव यू? फिर वही नंबर दो। और मैं क्या करूँ? ये लॉ तो लॉ ही है सर। मैं तो ATGGB GG खत्म है, ATG की जरूरत ही नहीं है। मैं वाई एम कमिंग टू चैरिटेबल ट्रस्ट नाउ। कितना चेंजेस आई? लेट मी टेल यू द अमाउंट ऑफ चेंजेस विच हैव बीन ब्रॉट इन टेल, और चेंज करके दोबारा चेंज कर देते हैं। यू नो दैट कॉर्पस डोनेशन इज एग्जेम्प्ट अंडर 11(1)D। मालूम है? ये माफ है, कॉर्पस डोनेशन 11(1)D में माफ है, या फिर 1023C में भी अब माफ हो गया प्रोवाइजो के अंडर। कॉर्पस डोनेशन, corpus are of two types. One is general corpus, the other is specific corpus. Specific corpus is for specific purpose. A general corpus is your choice, whatever you do. लेकिन हमें corpus को माफ कर दिया under 11(1)D, saying that it will be exempt provided it is deposited or it is kept in 11 mode given under 11(5). 11(5) में रखिए corpus donation माफ है। और ये भी क्या दिया? excess expenditure over the, इसको मैं लॉस नहीं कहूँगा, लोग लॉस कहते हैं, एक्सपेंडिचर इज मोर देन द रिसीट। पहले अलाउड था कैरी फॉरवर्ड करना और उसको सेटअप करना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। इन्होंने बोल दिया नथिंग डूइंग, एक्सेस एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। बट दे गेव वन रिलीफ was corpus donation. You have money in 11(5). You withdraw that money and spend for the current year out of the, I'm not talking out of 15%. Out of this, you have spent money. They say it is not an application because it is already exempt. Corpus donation is already exempt under 11(1)D. So any amount spent from the corpus is not an application. But they said nothing doing. It is not an application. But in future year, if you receive money and pay back to the corpus, then it will be exempt. ये कर दिया ना, it will be treated as application. भाई इस साल मेरे पास कॉर्पस में 5 करोड़ पड़ा हुआ है, मैंने 1 करोड़ खर्च कर दिया एक्स्ट्रा, मोर देन द रिसीट एक्स्ट्रा, ये एप्लीकेशन नहीं है 1 करोड़, क्योंकि एप्लीकेशन हमने एग्जामिशन दे दी है। अब नेक्स्ट ईयर मेरा पैसा आया, 50 लाख मेरे पास पड़ा हुआ है सरप्लस, आई गिव बैक टू द कॉर्पस, एग्जैक्ट वो एप्लीकेशन। इस तरह एक, लेकिन पहले लिमिट नहीं थी। नाउ दे हैव सेड दैट यू हैव टू पे बैक विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years। ये इस साल आया। पहले आया कॉर्पस डोनेशन kept at 11(5), excess not treated as application, but in a future year, if you refund the amount to the corpus, it will be treated as application. But problem डाल दी कि भाई 5 साल में वापस करो, ये भी चल गया। और भी लिख दिया जो 31 मार्च 21 का कॉर्पस था वो कभी भी एक्सेस एप्लीकेशन कर भी दोगे स्पेंड तो उसमें नहीं माना जाएगा। तो ये भी कंडीशन। अनदर कंडीशन that whatever corpus funds were there on 31st March 21, if any amount is spent out of that corpus, even if you pay back within 5 years, it will not be treated as application. So only corpus which is received on or after 1st April 2021, and you pay back that corpus within a period of 5 years, वो allowed होगा। ये clear हो गया सर?
कॉर्पस में 5 साल की लिमिट लगा दी और 21 तक का जो बैलेंस था खत्म कर दिया, उसको यूज नहीं कर सकते। करिए यूज, लेकिन वो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा आगे जाकर। क्लियर है सर? एनी क्वेश्चन? यही लोन का हुआ था। जिन्होंने मेरा कहना माना वो मुझे गाली दे रहे हैं, जिन्होंने इनकम बगैर पढ़े लॉ किया वो बड़े खुश हैं। क्या था? व्हेन यू बोरो मनी and you spend on the application, you apply that money. According to me, I said this is not an application at all, because loan is not an income. And when you have taken a loan, आपको नहीं करेंगे। लेकिन लोगों ने क्या किया, एक बिल्डिंग बनानी है 5 करोड़ की, बैलेंस है 2 करोड़, 3 करोड़ लोन लिया, एप्लीकेशन कितना किया, 5 ही खर्च कर दिया। वो कहते थे 5 करोड़। मैं कहा ये तो गलत है, ये तो एप्लीकेशन 5 करोड़ की बिल्डिंग ली, अकाउंटेंसी में 5 करोड़ आएगा, बट एप्लीकेशन इज ओनली 2 करोड़। That 3 crore is not an income, and if you applied that, नहीं होगा। When you repay the loan, even with interest, that will be treated as application. यही था सर, लेकिन मार दिया 31 मार्च 21 के पहला जो भी बोरो किया लोन है उसको खत्म कर दिया कि आप वो रीपे भी करेंगे तो उसको एप्लीकेशन नहीं माने। मेरा कहना जिन्हें माना वो पागल हो गया ना, जिन्होंने ले लिया बेनिफिट उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि 2 टॉपिक इनकम टैक्स में किसी को कुछ नहीं आता, इनको तो कुछ भी नहीं आता था। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दूसरा चैरिटेबल ट्रस्ट, किसी को कुछ नहीं आता था। अब तो चैरिटेबल ट्रस्ट काफ़ी इंप्रूव हो गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट इवन फॉर लोन, इफ यू हैव टेकन ए लोन and if the loan is outstanding on 31st March 21, you repay that loan, it will not be treated as application, although you might not have treated as an application when you acquire that asset. Clear, sir? Any loan taken after 31st March 21, मैंने बंद किया फिर हो गया, वो ज़्यादा ही प्यार हो रहा है मेरे साथ। Any take loan on after 1st April 21, on or after 1st April 21, it is not an income. If you have utilized that, no problem. Once you repay that loan, that will be treated as application, but loan should be repaid within a period of, इतना शोर मचाया मैंने जाकर पीयूष जी कि भैया मैं बिल्डिंग के लिए लोन लिया, कॉलेज बिल्डिंग बना, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, हाउ कैन आई पे बैक इन 5 ईयर्स? अगर 5 साल में कर देता तो मैं फिर लोन लेता ही क्यों? अरे एटलीस्ट आई हैव टेकन ए लोन फ्रॉम बैंक and bank has given me a period of 10 years to repay. Now how can I say loan should be refunded within a period of 5 years? अब कुछ नहीं होगा, जितना 5 साल में रिफंड कर देंगे वो एप्लीकेशन होगा, बाकी नहीं करेंगे वो एप्लीकेशन होगा ही। This is another issue which has come. Earlier there was no time limit for repayment of loan. ये इस साल ही करा, no time limit for repayment of loan. You could repay it any time and interest also was allowed a deduction. अब शुरू में तो इंटरेस्ट ही लेते हैं वो, लोन अमाउंट तो कम लेते हैं। But what I'm trying to explain, that you will not be allowed deduction, although you have not treated the loan as an income, and that's why whatever amount has been applied, you pay back the loan, it will not be treated as application if it is paid after a period of 5 years. अब एक बहुत बड़ा इशू जो मैं ठीक करा के लाया, इतना गलत करते हैं और फिर लड़ते हैं, मैंने कहा ये सब गलत बनाया। You to make a donation to other trust. First point, current year income can be donated, accumulated income cannot be donated. Accumulated income donate करेंगे तो application नहीं माना। I want to donate to another trust 1 crore rupees. ये लिखा, if you donate to another trust, 85% will be allowed as application. 85% will be allowed as application. मैंने कहा 85% application है तो 15% पे tax लगेगा। He said no, our intention was not. I said why? The section 11(1)(a) says any amount, income from a property held under a trust for charitable or religious purposes shall be exempt to the extent it is applied for charitable purposes in India. And if there is any amount set apart or please note the word, if there is any amount set apart or accumulated, so much of the amount set apart or accumulated which does not exceed 15%. मैंने accumulate कहाँ किया? सेट अपार्ट कहाँ किया? मैंने तो दे दिया 1 करोड़ रुपया, तो मेरे पास एक्यूमुलेट नहीं हुआ तो 15 रुपये का टैक्स लग गया। मेरे को गया मैं वहाँ पर, नहीं हमारी इंटेंशन, मैं इंटेंशन नहीं तो ये क्या है, ये तो क्लियर कट है। नहीं आप हमें बड़ी चीज़ें लेके आ जाते हैं। अरे मैं क्या लेके आता हूँ, लॉ है। और वो सर्कुलर दे दिया और उसको कह दिया कि वो 15% डीम्ड एप्लीकेशन हो गया। क्या कहा? बड़ा सिंपल मैं बताता हूँ, वो घुमा फिरा के नहीं। आपके पास 5 करोड़ आए, 2 करोड़ डोनेट कर दिया, हो गया। अब ये 3 करोड़ का 85%,
और 15 जमा कर सकते हैं, मतलब 45। वो 2 करोड़ का 85% दिया और 15 समझना वो एक्यूमुलेट कर रहा है, दे दिया उसको। वाई? क्योंकि लोग क्या करते थे, इधर डोनेशन दिया, पूरा एप्लीकेशन, वो 15% एक्यूमुलेट करके देता था, वो आगे लेता था 15% एक्यूमुलेट करके देता था। सिखाया तो हम लोगों ही नहीं था, वो आगे दे देता था 15%, इसलिए उनका वन टाइम 15% मिलेगा। आपको तो मिल गया, आपको तो 85 दे दिया, हमने डीम्ड एप्लीकेशन मान लिया, वो आगे देगा तो उसको डीम्ड एप्लीकेशन। क्योंकि ये चीज़ अब क्लियर हो गया विद द हेल्प ऑफ ए सर्कुलर। सो प्लीज नोट, ये नहीं है कि 15% टैक्स लगेगा, नो क्वेश्चन। Whatever you have donated, 100%, उसमें 85% एप्लीकेशन, 15% डीम्ड एप्लीकेशन। डीम्ड हो गया, वो एक्यूमुलेट नहीं करना। बाकी जो आपके पास बचा है उसका 15 एक्यूमुलेट कीजिए, 85 खर्च कीजिए। क्लियर है सर? ये क्लियर है? जो नया अमेंडमेंट आया, सॉरी अमेंडमेंट तो गलत आया था, बट clarification has come in the help of a circular where you have been clearly told there is nothing to worry, we are not going to tax you, but we have given this benefit because everybody was taking a benefit of 15% of the amount so received. अब एक बार ले सकते हैं, बार बार नहीं, यही पर्पस था, ये चैरिटेबल। मैंने 3 बार, हमारा इंस्टीट्यूट बहुत कोशिश करता है, डिपार्टमेंट जाता है, बहुत लड़ता भी है, लेकिन वहाँ पर सुनाई कुछ कम होती है। कमाई कम क्यों है? बॉस नहीं सुनेगा तो नीचे कौन सुनेगा? बात सीधी वही है, वो नीचे वाले कुछ नहीं कहते, वो कहते हमें जो इंस्ट्रक्शन आप बतवा दीजिए हम कर देंगे। अब यही प्रॉब्लम वहाँ पर आती है इंस्टीट्यूट में। कई बार हमने कहा इसको ठीक कर दीजिए, वो नहीं मानते हैं। यही हुआ कि जब आपको बोला गया, गलती तो मेरी थी, 2018 में करी थी, कि आई टोल्ड देम वी आर रीड्राफ्टिंग द लॉ, when you apply for when we have a registration under section 12A or we have approval under section 1023C, we do have approval or something, and it is a permanent approval, permanent registration. Kindly people, when you go for scrutiny आ जाती है, तो they ask for certificate, original certificate of registration or approval. And we don't have that because it may be 20-year-old, 30-year-old, 40-year-old, might have been misplaced, might have been torn, might have, something has happened. And even in the department, they don't have the copy of that certificate. So kindly allow once for all, allow everyone to apply based on the registration number, and they should be given digitalized number of registration. पर्पस तो सही था कि आगे से खोएगा नहीं, आगे से आपके पास भी रिकॉर्ड है, मेरे पास भी है। हमें क्या पता था, गए थे ईद मनाने, रोजे गले पड़ जाए। वो पीरियड कर दिया फॉर ए पीरियड ऑफ 5, एंड यू हैव टू अप्लाई एवरी रिन्यूअल विद इन 6 months प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ 5 years। 4.5 साल के अंदर अंदर आपको दोबारा अप्लाई। ये आया था 21 को आया था, कईयों ने 21 में ही अप्लाई कर दिया, उनको प्रोविजनल मिल गया 3 साल का, क्योंकि लॉ चेंज कर दिया था, इस साल से एप्लीकेबल नहीं होगा, अगले साल से कर। लेकिन कई तो लास्ट डे को करते हैं और कई इतने ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं, और अप्लाई कर दिया, उनको सबको प्रोविजनल मिल गया। ऑल रॉन्ग। और कईयों को बाद में अप्लाई किया, लेकिन कईयों ने गलत नंबर कोड लगा दिया, कईयों ने कुछ किया, देयर हैड बीन लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो वी रिक्वेस्टेड, डिपार्टमेंट वाले ये बहुत गए, और इन्होंने 30 सितंबर तक एक रिलीफ दिया था कि भी यू कैन रिलाई। स्टिल व्हाट डिड इट, फिर एक और रिलीफ मिल गया है ना। 30 जून इज द लास्ट डे। प्लीज इफ यू हैव कमिटेड एनी मिस्टेक, कोड नंबर गलत डाला, प्रोविजनल डाल दिया, रिन्यूअल डाल दिया, कुछ भी किया है, एक बार माफी दे रहे हैं, कर लो, ठीक कर लो, उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं। Am I right? The 30th June is the last date। और हम तो करेंगे तो 29 जून या 30 को ही करेंगे। फिर कहेंगे जी सिस्टम नहीं चल रहा था, इतना ज़्यादा लोड था, तो क्या करें। सर मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज़ डू एज फास्ट एज यू कैन, क्योंकि और लोड होता है। यू हैव कमिटेड ए मिस्टेक, you will be given renewal right from the earlier period. And if you have asked for, you got a what you call provisional, you had to apply within 6 months of the commencement of the charitable activity for getting the regular registration. आपने किया ही नहीं, 6 महीना निकल गया, अब भी आपके पास चांस है कि एक बार दोबारा कर लीजिए। अब तो 80G भी दे दिया उन्होंने, पिछले साल तो 80G भी नहीं दिया। इससे ज़्यादा क्या कहोगे इंस्टीट्यूट को, और क्या कहोगे।
जाते रहते हैं, मार खाते रहते हैं, फिर भी काम करते रहते हैं। ये आपको बता रहा हूँ, बहुत काम करना पड़ता है इंस्टीट्यूट में। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, दे ऑलवेज से दैट यू आर ऑलवेज कंसर्न, नॉट द क्लाइंट। आपको पड़ी क्या है, सब क्लाइंट का ठेका आप लेते हैं तो, बट ये वह अब मैं बता रहा हूँ कि 30 जून इज़ द लास्ट डेट। कोई भी गलती आपने करी हुई है फॉर रिन्यूअल ऑफ ए रेगुलर रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑफ फ्रॉम प्रोविजनल टू द रेगुलर, प्लीज़ अप्लाई अंडर 10A। कभी भी 10A से वो 10A भी ना कर देना, 10A अगेन एंड गिव द प्रॉपर कोड नंबर। कई लोग तो कोड ही गलत डाल दिए, तो उनकी क्या गलती है इंस्टीट्यूट हाउस की, डिपार्टमेंट की? कंप्यूटर ने जो कोड आया उस हिसाब से आपको दे दिया। हमने कोड 2 डाला, प्रोविजनल दे दिया, कोड 1 डालता, रिन्यूअल कर देता। उनको क्या पता? सो माई पॉइंट इज बी केयरफुल, दिस इज द लास्ट चांस यू आर गेटिंग एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आर इन स्ट्रेस। जेन्युइन चैरिटेबल ट्रस्ट वाले मर रहे हैं, बाकी तो कोई है ही नहीं। हमने तो कहा था ये टैक्स कर दो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, दे आर नॉट चैरिटेबल एट ऑल, बट HRD डज नॉट एग्री। HRD की प्रॉब्लम है, नहीं तो हमने तो रिकमेंड किया था कि व्हाट दे वांट टू पे टैक्स, दे वांट टू पे टैक्स, कम से कम माल तो उनका है। अभी क्या है, मेरे पास एक आया सर, 3 ट्रस्ट एंड ही इज डूइंग एक्सेलेंट, 3 ऑल द 3 कॉलेज वर डूइंग इट। ही सेड सर मैं आया हूँ, मैं एक ट्रस्ट को बंद करना चाहता हूँ, मैं कर दीजिए। मैंने कहा 115 TD लग जाएगा, तो कोई बात नहीं, 115 TD में टैक्स दे दूंगा। मैंने कहा रुक जा जरा, टैक्स तो दे देगा, फिर भी वो तेरा नहीं है माल, दैट इज नॉट योर्स, इट इज फॉर पब्लिक एट लार्ज। क्यों सोचे कि मैंने टैक्स दे दिया तो सारा माल, सारा कॉलेज, सारी बिल्डिंग मेरी हो गई? नो क्वेश्चन, इट इज ए इररिवोकेबल ट्रस्ट एंड चैरिटी कमिश्नर विल टेक अवे दैट। चैरिटी कमिश्नर विल टेक ओवर दैट। आपके हमारे यहाँ तो पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट है, आपके यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। महाराष्ट्र में, मेरे को वो गुजरात में भी है मेरे ख्याल पब्लिक, सेम इज देयर। Other places public welfare trust is not there, but charity commissioner is there also. So my point is कि देखिए, बंद करने के बाद भी you can donate to any other trust of the similar type. If you don't donate, the entire amount after paying tax under 115 TD, which is 30%, will be of the public at large. आपका कुछ भी नहीं है। और जिसने रिन्यूअल नहीं कराया, चाहे वो 6 months वाला, चाहे ये रिन्यूअल वाला, 115 TD सबसेक्शन 3 क्लॉज 3I डाल दिया है। जो नहीं कराएगा वो उसको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा ऑन दी एक्रीडेड इनकम। मैं बोल रहा हूँ 30, और उसके बाद भी द एसेट्स आर नॉट योर्स, इट इज फॉर पब्लिक। प्लीज रीड 115 TD सबसेक्शन 3 क्लॉज 3I इंसर्टेड ओनली लास्ट ईयर। बहुत खतरनाक है और ये आपको तंग कर मारेगा। अभी मैंने उनको एक रिक्वेस्ट किया था पीयूष जी कि 1023C की अब जरूरत क्या है, दोनों के लॉ हो गए, व्हाई डोंट यू मर्ज? आई सेड कीप इट अप टू 3IADAE, 5 करोड़ से नीचे वाले, बाकी को मर्ज कर दो ना। एक अलग अलग रखा है, व्हाट इज द नीड, कर देंगे। अब करेंगे या नहीं करेंगे? पहले तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा था जो कर रहा था, लेकिन गाली बहुत देता था हम लोगों को। मैंने तो उसे कहा तू यार अपनी फ्रेटर्निटी को गाली देता क्या करता है? सर वो मेहनत नहीं करते। मैं क्या, आपको तो पनिशमेंट पोस्ट मिली हुई है इसीलिए मेहनत कर रहे हो, नहीं तो आप कौन से करते? आइए TPL तो पनिशमेंट पोस्ट है, वहाँ तो पढ़ना पड़ेगा और करना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसे क्यों हम लोगों को देख कर? ज़्यादा इंटेलिजेंट होना भी खराब होता है। CA था, उसको सब पता था अंदर की बातें एकदम ये कहता ये हो रहा है, ये हो रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, रिकमेंडेशन हैव बीन गिवन, इवन इंस्टीट्यूट आल्सो हैज सेड that please merge 1023C and 1112. What is the need of having two? In one case it is approval, in other case it is registration. Authority for approval and registration are the same. Every provision has become same. Was section 10 clause 23C में 23 प्रोवाइजो है। कितने प्रोवाइजो? सिर्फ 23 प्रोवाइजो, और उसके नीचे हर प्रोवाइजो के नीचे एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2, एक्सप्लेनेशन 3, भूल गए 2A, 2B, 2C, एक्सप्लेनेशन। सर 15 पेज का है सेक्शन 10 क्लॉज 23C, 15 पेजेस। मुझे शक्तिकांत दास जी का फोन आया, रिजर्व बैंक का। अरे यू, व्हेन आई वाज अ रेवेन्यू सेक्रेटरी, यू टोल्ड मी समथिंग दैट देयर इज अ लॉ व्हिच हैज 15 पेजेस एंड ओनली 1 क्लॉज। मैंने कहा जी ये वाला है। मैंने कहा इसका मतलब आज फाइनेंस मिनिस्टर बनने जा रहे हैं।
समझ में आया? अब क्या होगा मुझे नहीं पता, अब क्या होगा नहीं, पर रूमर है, very strong rumor that Reserve Bank Governor will become the finance minister, but now I can't say. मैंने 2 बार तो उनको congratulate कर दिया है, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा. What I am trying to explain, 23 प्रोवाइजो हैं सर, 23 प्रोवाइजो, और आपको पता करना 15th प्रोवाइजो, तो कैसे पता करेंगे सर? ये 15 प्रोवाइजो पढ़ेंगे कैसे? एक्ट खोलना पड़ेगा. एक बात सुन लियो, जो भी एक्ट है लॉ में, कौन सा भी एक्ट है, वेर एवर इट इज रिटन प्रोवाइडेड दैट, इट इज फर्स्ट प्रोवाइजो. जब भी प्रोवाइडेड दैट है, ये फर्स्ट प्रोवाइजो दो, कहीं भी लॉ में, किसी भी लॉ में पढ़ लो. प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ये सेकंड प्रोवाइजो होता है. इसके बाद मुझे मत पूछना. आई थैंक पीयूष जी, आई थैंक Purushottam ji, I also thank Salim, I also thank this gentleman, I also thank Neerav Agarwal, I also लगाते रहो, जितने मर्जी बोलते रहो. यहाँ पर भी यही है. 2 प्रोवाइजो को तो पता है, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, उसके बाद ऑल्सो लगा लो, जितने लगाने लगा लो, और फिर गिनना पड़ेगा. फर्दर के बाद पहला ऑल्सो 3, अगला ऑल्सो 4, अगला ऑल्सो 5, तब 15 में पहुँचोगे, 23 जाना है. अब कोई ऑल्सो मिस कर दिया तो प्रोवाइजो ही मिस हो गया. समझ में आ गया? आपको देखना है, मुझे नहीं देख. अच्छा, और सुनिए, प्रोवाइडेड ऑल्सो 15 प्रोवाइजो है सर, पीयूष जी है. अब वो कहते हैं कि हम 14 के बाद एक नया डालना चाहते हैं. डाल दीजिए, डालो प्रोवाइडेड ऑल्सो. वो 14 के बाद जो डलेगा वो 15 हो गया, जो ऑलरेडी 15 था 16 हो गया, तो बढ़ता गए. तो ये हमारा लॉ है. कोई लिखना थोड़ी है ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है. कहाँ लिखना है? बीच में डाल दो 14 के बाद, वो 15 बन जाएगा, और जो नया है वो तो पुराना जो है 16 हो जाएगा, उसके नीचे 17 18. तो ये सिस्टम है हमारे यहाँ. तो इतने प्रोवाइजर मैंने करने क्या पढ़, समझ में नहीं आता. मैं अभी भी पढ़ता हूँ ना, तो सेक्शन 11 वाले पढ़ता हूँ, उसके साथ मैं कह रहा हूँ ये तो उधर है ही है. एक ही सेक्शन है जो उधर नहीं है, और वो है फॉर्म 9A. 11(1)(a) का जो होता है वो, दैट the undertaking which you are giving that I'll apply next year, or I apply in the previous year which I received, or the year after that, वो 9A फॉर्म 1023C में नहीं है, लेकिन 11-12 में 9A का बेनिफिट है. तो मैं गया क्यों भाई, सब कर दिया, ये क्यों कर दिया? कहते हमें पता है, हम देना नहीं चाहते. मैं कहा उसको भी हटा लो, फिर देना नहीं चाहते. कहते वो हटा नहीं सकते या देंगे. मैंने बोला उनको, मैंने कहा वहाँ भी 9A दिया है तो इधर भी कर दो ना. 9A है क्या कि आई विल अप्लाई नेक्स्ट ईयर, यही तो बेनिफिट है. और आई हैव नॉट रिसीव्ड द इनकम. अब 1023C में इंटरेस्ट है, रिसीव नहीं हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट है. हाउ कैन आई स्पेंड इट? बट 1023 नो, यू कांट गिव 9A, यू कैन गिव 11(2), दैट इज अ डिफरेंट थिंग. 9A नॉट अलाउड, बट 9A इधर तो अलाउड है ना. और 9A की गलती आपको पता ही लग गई थी. यू हैड टू गिव द 9A 1 month बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, सॉरी टू ड्यू ऑनर बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न. और वो था 1 महीना पहले वो डालना था. तो कैसे पता लगता भाई 9A? तो अमेंडमेंट कर दी 2 months बिफोर दैट, दैट ऑल्सो इज देयर इन 9A. वो भी हो गया. बट मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, सबसे अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो चैरिटेबल ट्रस्ट है. और सबसे कम पैसे मिलते ही नहीं, वो चैरिटेबल ट्रस्ट के ही है, मिलते ही नहीं है. लेकिन अब छोड़िए नहीं, 5 गुना नॉर्मल सर्विस से लीजिए और देंगे, वो देंगे. एक और बता दूं, 90% गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च, दे आर नॉट रजिस्टर्ड एट ऑल. वो 56(2)(10) में कंप्लीटली फुल्ली टैक्सेबल है विदाउट इवन 1 रुपी डिडक्शन. कोई टैक्स नहीं. 56(2)(10) क्या कहता है? एनी डोनेशन रिसीव्ड बाय और पेड टू ए रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट इज नॉट कवर्ड अंडर 56(2)(10). अगर 50,000 से ऊपर की डोनेशन आई, aggregate amount whether from 1 person or more than 1 person, and if you are not registered or approved, the entire amount will become taxable under the income from other sources. पहले तो हम जब 17 नहीं था तब तो हम डिडक्शन ले लेते थे, खर्चा किया जी. अब कोई कहता मैं AOP बना लूँगा. मंदिर का कौन सा AOP होगा डोनेशन में? डोनेशन में AOP तो नहीं होगा. बिजनेस करोगे वो AOP कर सकते. सो माई पॉइंट इज, अभी भी टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क आर नॉट रजिस्टर्ड. They are fully liable to pay tax because they are receiving donation exceeding ₹50,000, whether for 1 person or more than 1 person. ये पूरे टैक्सेबल हैं, 100% टैक्सेबल है. आप कहोगे हम तो खर्चा क्लेम करते थे और वो कर लेते थे, अब नहीं है. After 1/4/2017, this is going to be
big problem for all of you. 54F पर्पस आपको पता है क्यों किया. 54F में बोनस शेयर बेचे, सारा कैपिटल गेन आया और सारा का सारा 54F पे लगा दिया और कोई टैक्स नहीं दिया. स्टार्ट तो यही बॉम्बे से हुआ. इसने 40 करोड़ का फ्लैट लिया, इसने 50 करोड़ का लिया, इसने 100 करोड़ का लिया, साथ में मार्केट बढ़ गई और मार्केट बढ़ के इसलिए उसका कैपिटल गेन आया. इंटायर कैपिटल गेन हैज बीन इन्वेस्टेड इन द न्यू हाउस एंड यू आर टेकिंग ए बेनिफिट प्रोवाइडेड यू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ 54F. और वो कंडीशन सेटिस्फाई करते थे. डू नॉट ओन मोर देन वन रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, कैन नॉट, वो सब कंडीशन है. देखिए अब वहाँ पर कंडीशन लगा दी, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 10 करोड़. 54 में भी कर दी, पर 54 में प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? वन हाउस आप 10 बेचो, 10 के 10 करोड़ ले लो. लेकिन यहाँ तो एक ही घर खरीद सकते हैं. तो इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले होता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय कंसीडरेशन प्राइस. इफ यू इन्वेस्ट 100%, 100%. अब होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू 10 करोड़ डिवाइडेड बाय द नेट कंसीडरेशन. 10 करोड़ से ऊपर तो प्रोपोर्शन मिलना ही नहीं है. तो अब इसी पर्पस के लिए ये 54F आया था एंड ऑटोमेटिकली 54 भी आ गया. सो दिस 54F हैज बीन लिमिटेड टू 10 crore for investment into house. But in 54, you have 10 houses sold, 10 houses purchased. Where is the difficulty? For each you get 10 crore. But in 54F, you cannot buy more than one house. तो उस केस में तो एक ही बेनिफिट मिलेगा और वो भी अप टू 10 crore. Anything you want to ask under 54? ये मुझे रिवीजन करके मज़ा नहीं आ रहा है. कोई नई चीज़ें पूछिए, ये क्या है, पुरानी चीज़ें. ये भी बताया मुझे कि आपको 24 मैं याद करे जा रहा हूँ और बोलता जा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें याद. मुझे कोई याद नहीं है. ये देख लिया कि हाँ ये ऐसी चीज़ें आई थी. 54F. मैंने एक बताऊँ कितना टाइम है, मुझे बता दीजिए. मेजर तो वही है. जितना टाइम है जो पूछना इनकम टैक्स में पूछना. आई एम गिविंग यू द लिबर्टी. आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क. दैट विल बी बेटर. हाँ जी, अरे माइक आ रहा है. यार करिए. Ask anything you want to ask. Hello, sir. आता 10 मिनट में 15 मिनट में लोगे तो हाँ बोलिए. Sir, in case of AOP and AOP is going to be closed down and the asset is going to be sold to one of the partner of AOP. सर आपको 9B 55 45 4 नहीं पता क्या? मतलब 2 से 3 साल पहले आ गया. Actually, the property. What is dissolved? कहो ना. What do you want to say? Technical हो सर. Dissolve कर देंगे. जो एसेट जिसके पास जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू लेकर उसके ऊपर टैक्स देना है फर्म को. So फर्म को टैक्स देना. But after indexation it is going to be sold at पहले less बताइए loss. डिसोल्यूशन है ना. डिसोल्यूशन में 45(4) नहीं लगता. सिर्फ 9B रेड विद 45(1) एंड 28 लगता है. पहला बात समझ लो. अगर डिसोल्यूशन है, रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो 9B तो डीम्ड ट्रांसफर कहता है. 9B में टैक्स नहीं लगता. इट इज ओनली डीम्ड ट्रांसफर. टैक्स कहाँ लगता है? 28 फॉर स्टॉक, 45(1) फॉर कैपिटल एसेट. लेकिन अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन है वो 45(1) 28 लगेगा, उसके बाद 28 ऐसा 45(4) भी लगेगा. तो वो पॉइंट याद रखिए. 45(4) में कुछ नहीं है. वो कहते हैं उसका बनता 5 करोड़ है कैपिटल आउटस्टैंडिंग अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट. तो आप उसको 6 क्यों दे रहे हो, 5 क्यों नहीं दे रहे? रीजन बताओ. व्हाट इज द रीजन यू आर गोइंग मोर देन व्हाट इज द कैपिटल आउटस्टैंडिंग? वो गुडविल मांगता है, लाओ टैक्स दो. सर वो इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू मांगता है, लाओ टैक्स दो. सर वो जो लैंड पड़ी है बाकी या एसेट पड़ी है उसकी अप्रिसिएशन मांगता है, लाओ टैक्स दो. वो टैक्स आज मांग रहे हैं, उसका बेनिफिट आपको दे देंगे बाद. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, रिकॉन्स्टिट्यूशन में दोनों सेक्शन लगते हैं. दोनों मतलब 9B रेड विद ऑफ कोर्स 28 प्लस 45(1) and also 45(4). And whereas it is dissolution, और मैंने एक बात कही थी, जितने भी लोग बैठे हैं और अपने पार्टनरशिप फर्म में हैं आपकी या आपके क्लाइंट्स की, टेल देम टू हैव 3 person as partner. क्योंकि even if it is written that after the death his legal heir will become a partner, it is a case of dissolution and not a case of admission at all. 3 होंगे, एक मर गया, कोई बात नहीं, 2 तो कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो वो चल जाएगा. अगर 2 में से 1 चला गया तो फिर वो किसी ने पूछा सर 2 चले गए, तो मैं कहा मैं भी चला जाऊंगा, उसमें मैं क्या कर सकता, सभी ने जाना है. लेकिन वो चीज़ अलग है. बट बी केयरफुल. Okay, sir. And if it is not dissolution and AOP after indexation, it is
said at lesser value than आपने एओपी को डिसॉल्व करा, नहीं किया, अभी तक नहीं किया है। अभी करोगे ना। टैक्स अब लगेगा जब अमाउंट रिसीव्ड होगा बाय द पार्टनर, एसेट रिसीव होगी, अभी नहीं लगे। डिसॉल्व करके रख दीजिए, अगले महीने करेंगे तो अगले महीने, अगले साल करेंगे तो अगले साल। अमाउंट रिसीव्ड, आज यू हैव रिसीव्ड ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस, रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन में तो ये आना ही नहीं है। रेजोल्यूशन फेयर मार्केट वैल्यू माइनस द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री, बी ट्रांसफर, एसेट को जब मिलेगा उस एसेट की मार्केट वैल्यू माइनस में। क्योंकि आपने या तो एसेट बेचो, नहीं बेचो, पार्टनर को दिए या मेंबर को दिए, तो वो एक ही चीज़ है, इट इज सोल्ड टू द आउटसाइडर। Please note that a person to whom this asset is given, whether he is a partner or not a partner, the same treatment which is there in the hands of AOP, AOP के हाथ में टैक्स लगेगा। हाँ वही, वो उसके हाथ में नहीं लगेगा। AOP डीम ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर और AOP फर्म। यस, गुड इवनिंग सर। हाँ जी बोलिए, गुड इवनिंग। सर, जो ट्रस्ट के बारे में आप बता रहे थे, हाँ, एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को जनरल डोनेशन देता है, दे दो, ठीक है, तो उसको कॉर्पस डोनेशन नहीं देनी, नॉर्मल डोनेशन, जनरल डोनेशन। हाँ जी। तो वो उसको 100 रुपया मिलेगा, तो उसको 100 रुपये में से कितने रुपए खर्च करना? 100 रुपये उसको डोनेशन मिला, 100 रुपये में अगर वो खर्च करता है तो 85 15 जोड़ ले, अगर खर्च नहीं करता दूसरे को डोनेट करता है तो वही डीम्ड हो गया एप्लीकेशन। आप बात समझिए, हम आपको डबल 15% नहीं देना चाहते। द पर्पस इज वी डोंट वांट टू गिव यू डबल 15%। यू हैव टेकन गिवन 100, तो यू हैव पेड द मनी, you have not taken the benefit of 15%. He's got 100. If he wants to spend 85, accumulate 50. But if he wants to pay 100, let him pay. Again, that person will be able to see. एक ही आदमी 15% का बेनिफिट ले सकता। 15 जो रिसीविंग ट्रस्ट है वो 15 रुपए देके अगर वो डोनेट नहीं करेगा तो एक्यूमुलेट कर सकते। एक्यूमुलेट, वो तो है ही, वो तो लॉ है। 15% से ज़्यादा नहीं कर सकता, बाकी करना है तो 11(2) में जाइए। 11(2) तो जा ही सकते हैं ना आप। अरे 15% तो मैक्सिमम है, बट इफ यू वांट टू एक्यूमुलेट मोर इज 11(2), फॉर्म नंबर 10 भरिए, 11(2) में जाइए, पीरियड ऑफ 5 ईयर मैक्सिमम, यू कैन डू इट। उसमें क्या दिक्कत? ठीक हो गया। पर्पस था कि 2 बार 15 मत लो, घुमाओ नहीं, घुमाते ही रहे हैं, और वो बंद हो गया। क्लियर है? थैंक यू। चलिए, समवेयर हियर। हाँ सर, एक मिनट सर, एक माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग 45(4). इफ इन 45(4) सेक्शन, हाँ, if incoming partner is settling account outside to retiring partner, then मेरे को क्या पता आउटसाइड क्या हो रहा है? no, in दैट इज that- देयर आउटलुक। फर्म को क्या ले देना? अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूँ 50 से 210 लग जाएगा, क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन। no, and अरे भाई भाई ऐसे ही कर रहे हैं, नहीं ऐसा भाई भाई ऐसे ही कर रहे हैं। ये आपस में कर दिया, उतना ले लिया, फिर उसको गिफ्ट दे दी। गिफ्ट तो अलाउड है ना भाइयों में, आउटसाइड पार्टनर नहीं है, वो चीज़ें अलग है। सर मेरा क्वेश्चन अलग है। 2 पार्टनर है, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, एक पार्टनर, देखिए 2 पार्टनर में एक पार्टनर रिटायर नहीं हो सकता, फिर तो रिजॉल्व हो गया। एक स्टेटमेंट गलत है। 3 पार्टनर है, एक पार्टनर रिटायर। 3 पार्टनर है, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। हाँ, अब उस केस में गुडविल का जो अमाउंट है, जो इनकम, व्हाट इज गुडविल? क्यों दिया आपने एक्स्ट्रा? मैंने पूछ रहा हूँ, अब रीजन बताओ। सपोज IT कंपनी है, उसका एक वैल्यूएशन है, तो दिया ना। हाँ। वो ये भी कह सकता है इंटेंजिबल एसेट का वैल्यूएशन है, वो ये भी कह सकता है अप्रिशिएशन, जो भी होगा टैक्स लगेगा। नहीं टैक्स लगेगा। अब इनकमिंग पार्टनर है, वो रिटायरिंग पार्टनर को आउटसाइड पैसा दे रहा है। हे राम, फर्म को क्या ले देना? आउटसाइड दे रहा है तो हाँ, उसके आउटसाइड में 50 से 210 लगेगा। व्हाई आर यू गिविंग मनी टू हिम? 50 से 210 लगेगा। नहीं, वो कैपिटल गेन में जाएगा ना। सर कैपिटल गेन नहीं होगा रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट हुआ ना सर। मैं मेरा पार्टनरशिप का सर। राइट कैसे दे सकता है? मैं इनको कैसे दे सकता हूँ? वे रिलेटेड नहीं है। मैं अमाउंट पे कर रहा हूँ ना उसका। आप अपन तीनों पार्टनर है, आप रिटायर हो रहे हो। सर फर्म देती है, वो पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, आउटसाइड नहीं करना। मैं और आप पार्टनर हैं, मेरा 99, आपका 1% है, मैं आपको अब 99 दे रहा हूँ, लेकिन आपसे कुछ ले नहीं रहा, तो कुछ भी नहीं होना फर्म में। नहीं उस केस में नहीं। एडमिशन के टाइम में इफ आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग नथिंग, और अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, अगर मैं उतना ही ले रहा हूँ जितना मेरा कैपिटल आउटस्टैंडिंग है, तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन बाहर जो कर रहे हैं वो फर्म से क्या ले देना? एक वो तो आप टैक्स करेंगे अपने आप को। हाँ, उस केस में वो कैपिटल गेन में सेक्शन में जाएगा उसमें। वो एक कैपिटल गेन कहाँ से हो गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हुआ। नहीं सर। अरे कहाँ से कैपिटल गेन हो गया? किस चीज़ का कैपिटल गेन? मैं सर 3 पार्टनर है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। 3 पार्टनर है, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, गुडविल का अमाउंट सपोज 1 करोड़ डिसाइड हुआ है। अरे गुडविल नहीं दिया जाता, गुडविल फर्म की होती है, वो बाहर दे रहा है तो वो गिफ्ट है, वो गिफ्ट है 50 से 210। 50 से 210 जो फर्म देगी वो गुडविल है। फर्म ले रही है तो गुडविल के पैसे फर्म दे रही है,
और फर्म ने उसको गुडविल क्रिएट करनी है और गुडविल में डेप्रिशिएशन मिलनी नहीं है, बात खत्म। और आप बाहर जाके कि मैं इधर नहीं दूंगा, कच्चे के दे दो, मैं क्या करूँ, पक्के के नहीं दे सकते। सर सारी बातें मत पूछो मेरे से, चलिए आगे। सर 43 सर आपको पता है क्या लिखा, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर सेक्शन 28 to 43C, तो 43 भी आता ही नहीं वहां पर, अकाउंट साहब बनाते ही नहीं। अरे आप लोग बता दो ना, इंटरेस्ट हो सकता है पेबल हो उधर, दोनों में क्या हो सकता है, दोनों में लिखा है, कहां लिखा दोनों में है? नहीं सर, वो चीज 43 भी अलग है, वो दूसरी लैंग्वेज कहता है। यहां तो ये कह रहा है कि आपको इनकम प्रिज्यूम करनी है 6% और 8% है, इधर केस में भी, और 50%, और वो मिनिमम है, ये आपके बेनिफिट के लिए नहीं है, डिपार्टमेंट के बेनिफिट के लिए। इफ इट इज मोर यू हैव टू शो मोर, इफ इट इज लेस यू हैव टू शो 8 or 6. Now one last question. One property was sold in 20 to 23. Last question now. बोलिए। सर One property was sold in financial year 20 to 23. One property was sold In financial year 20 to 23. हाँ जी, Capital gain was 10 lakhs. कैपिटल गेन वाज 10 lakhs. हाँ New property was purchased in June 23. हाँ। An exemption was taken. New property was purchased for 1 crore. कौन सी प्रॉपर्टी बेची, नाम नहीं बोला, किसने बेची नाम नहीं बोला, resident- इंडिविजुअल है, हाउस प्रॉपर्टी है, Individual residential property बेची. इंडिविजुअल ट्रांसफर दी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल कौन सी है? अरे नाम बोलो सर, ये टेक्निकल भी, टेक्निकल प्रॉपर्टी बेची, किसने बेची नहीं पता, और क्या चीज बेची वो तो बताओ, रेजिडेंशियल है कि नॉन रेजिडेंशियल? Residential. हाँ तो फिर क्या करूं, कैपिटल गेन 54 लेना है। हाँ 54 ले लिया. हाँ ले लिया। नया प्रॉपर्टी जो खरीदा वो 1 करोड़ का था. हाँ? नया जो प्रॉपर्टी खरीदा वो नया प्रॉपर्टी 1 करोड़ का है। हाँ. हाँ जी। कैपिटल गेन खाली 10 लाख का था. हाँ अभी टू द एक्सटेंट 10 लाख इन्वेस्टेड किया, वो मिल गया, वो तो ले लिया. अभी जुलाई 23 में वापस से प्रॉपर्टी, जुलाई 24 में वापस से प्रॉपर्टी बेचा. आवाज नहीं आ रही क्लियर। उसके बाद बेच दिया, दूसरा बेचा. दूसरा बेच के आप कह रहे हैं कि इसका बेनिफिट ले लें विद इन 1 year बिफोर। हाँ यस. सेल 1 by 1, सेल 2 by 1, सेल 2 by 2 अलाउड है, सेल 1 by 1, एक शकल में 2 भी ले सकते हैं, सेल 2 by 1 अलाउड है। तो आपने एक बेचा, 10 का इन्वेंट ले लिया, उसका एक और प्रॉपर्टी बेच दी और 1 year के विद इन बेच दी, तो 90 लाख वहां से ले लो, ये अलाउड है। सेल 2 by 1 अलाउड है, सेल 2 by 1 अलाउड है, सेल 1 by 1 नहीं, by 2 अलाउड नहीं है अलाउड 2 करोड़ से ऊपर, वंस इन लाइफ टाइम, वो नहीं, अदरवाइज नहीं। सर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, we need to complete. सर मैं बाहर We will जो मर्जी पूछ ले, offline बाहर करते हैं. मैं We have to यहाँ hand हूँ, over. बाहर पूछ ले। थैंक यू वेरी मच। We have to hand over the hall. थैंक यू, वही दिक्कत है, अदरवाइज तो क्या, इनको क्या दिक्कत है? सर इधर ही है. बाहर ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। आई विल, आई एम वोट ऑफ थैंक्स देख लिया जाओ. हाँ आई नो, तो मैं आहूजा सर इधर ही है. We can meet him outside. Your questions would be continued. No need to worry for that. But as far as the hall is concerned, we need to vacate. हॉल वेकेट करना। It is an immense honor and truly humbling privilege for me to deliver this vote of thanks to our esteemed speaker, CA Dr. Girish Ahuja sir, whose towering presence and unparalleled expertise in the realm of direct taxes have left an indelible mark on our profession. Sir has graced us with profound knowledge and expertise in the field of direct taxation. Sir, your insightful observation and challenge our conventional thinking, sir, and encourage us to approach taxation from a fresh perspective. Sir, during speech, you have various moments not only captured our attention, but also demonstrated how Ahuja sir communicated complex ideas and relatable in memorable way. Sir, as we conclude this momentous gathering, let us raise our voice in thunderous ovation, expressing our deepest gratitude and reverence for this titan among taxation experts. Thank you, and thank you for your invaluable presence and enriching our lives, your boundless knowledge and wisdom. Thank you, sir, thank you. Thank you everyone. See you tomorrow morning. Thank you.